This call is now being recorded. See, as I said earlier, that we are running behind our schedule by 1 week. एक week से हम पीछे चल रहे हैं and we have completed certain topics like polity, geography, environment, economy, history. History में we have discussed the ancient India and the modern India. Okay, and pending topics are what? International relation. Then we have science and technology, CSAT, art and culture, and medieval India. These topics are pending. But since current affairs is very important topics, we will start with the current affairs, and in between the current affairs sessions, we will slowly include these pending topics. Okay. So this is my plan. Since we are running 1 week behind the current affairs and current affairs alone holds a weightage of nearly 35 questions, so it is very wise for us to start with the current affairs immediately. Okay, and these topics like art and culture and medieval India etc. इसका जो weightage है UPSC examination में it is quite low. So we'll start with the current affairs. Okay, so this is going to be the first session on the current affairs. Okay, and we will be starting with the current affairs of the economic section. We'll be starting the current affairs of the economic section. Okay, and here I have written prelims 2025. यहाँ पे मैंने लिखा है prelims 2025. But since UPSC is asking the current affairs of nearly 1.5 years, ठीक है, nearly 18 months के UPSC current affair पूछता है. Okay, so this particular session that we are going to talk about in this particular PDF, this will be relevant. This will be relevant for prelims 2025. Okay, and prelims 2026 both. ओके, गॉट माय पॉइंट. द पीपल हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस ईयर प्रीलिम्स उनके लिए तो ये रेलेवेंट होगा ही, बट द पीपल हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट द प्रीलिम्स 2026 उनके लिए भी ये रेलेवेंट रहेगा. कीप दिस थिंग इन माइंड. ओके, सो डू नॉट बी अफ्रेड कि आपका स्टेटिक कंप्लीट नहीं हुआ है एंड देन आई एम स्टार्टिंग विद द करंट अफेयर. ओके, नाउ फीचर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट. तो जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है ना करंट अफेयर का, इसके फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस जो करंट अफेयर का सेशन है ना, इसमें स्टेटिक भी होगा. स्टेटिक इज कवर्ड एज ऑल्सो द करंट अफेयर्स इज कवर्ड. सो बोथ करंट एंड स्टेटिक इज मिक्स्ड, सो दैट कि जिसका स्टेटिक कंप्लीट नहीं है ना, उसको भी ये सेशन समझ में आए. सो दैट आई हैव इंक्लूडेड द स्टेटिक एंड करंट अफेयर्स. मोर ओवर इसमें मेंस एंड जो प्रीलिम्स के जो PYQ है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसका इंटीग्रेशन है. ठीक है, दैट इज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हेयर. थर्ड इज कि जो यूनियन बजट आया है अभी 2025 का एज ऑल्सो द इकोनॉमिक सर्वे, उसमें जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है उस लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जो है ये हमारा डॉक्यूमेंट बनाया गया है. मोर ओवर जो मार्केट में जो लीडिंग डॉक्यूमेंट्स इन द मार्केट लाइक PT 365 और विजन IAS, बाजीराम रिसाइटल्स, इनसाइट्स ऑन इंडिया, श्री राम IAS, ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस के जो बैलेंस्ड है, मिक्स्ड है, बेस्ट वर्जन है ना, उन सारी चीजों को हमारे कंटेंट में इंक्लूड करा गया है. ओके, सो दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ऑफ बी वाइज IAS इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू गाइस. ठीक है, जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ एज ऑल्सो द PDF दैट आई एम गिविंग यू is going to be a one stop solution. And since the previous session I have started giving the PDF file in advance. PDF फाइल जो है आपको एडवांस में मिलना शुरू हो गया है. So better idea is कि before coming to these sessions ना, you take 5 to 10 minutes just to go through the PDF file, so that whatever I'm teaching you in this session is you are able to understand this particular thing. Okay, so this is me Bharat Bhushan Asthana and this is my qualification. Okay, so I hope कि ये document क्या है and why we are starting with the current affairs, what we are going to do, ये आपको समझ आ गया होगा. Now we will immediately start with by discussing the actual things. Okay, so as I said कि today's session is going to be a short session. Okay, this is going to be a trial session on current affairs, and after this session is done ना, I'll be taking feedback of nearly 10 people. 10 लोगों का feedback लूंगा, so that we can improvise on this document as also the teaching pedagogy. उसके ऊपर भी जो है ना I'll be taking feedback. Okay, so this session is going to be a short session. These are the total topics, okay, that we'll be covering in various sections. Okay, and after that various other PDF files will also be shared covering the current affairs of nearly 1.5 years. ये सारा आपके साथ शेयर हो जाएगा. Okay,
Today's session, we are going to discuss these four topics. One is monetary policy of RBI, under which we will be discussing the monetary policy committee, then monetary policy transmission, then variable repo rate and the variable reverse repo rate. We know repo rate hota hai and then reverse repo rate hota hai. There is something called variable repo and variable reverse repo that we will be discussing. Then we will be discussing the priority sector lending scheme, then the RBI surplus transfer to the government of India, and then Mumbai interbank outright rate, and then LIBOR, etc. All these things we are going to discuss today. Okay. So the first topic that we are going to discuss is monetary policy of India. So whatever things, some of the things I have कि मैंने यहाँ पे ना underline कर रखा है चाहे लिख रखा है, these are the important things that I have already underlined, and you should be giving more focus on these kind of highlighted things or written things. The first topic is monetary policy of India, and in the monetary policy we have three things. One is in general monetary policy, then monetary policy committee, then monetary policy transmission, and then VRR, and then VRRR. Okay, and so we'll start discussing this particular thing. So first thing is कि monetary policy committee, monetary policy of RBI is always in news, and ये अभी फिर से news में था. Why it was in news? Reason being कि RBI had released a study. RBI ने एक study release किया था monetary policy transmission के ऊपर. Now this study was very technical. ये बहुत technical study थी, तो हमें इस study को जानने की जरूरत नहीं है. For the from the perspective of UPSC, we don't have to study कि what ये study के अंदर क्या चीज था. बट इन जनरल वी शुड बी हैविंग आइडिया ऑन मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, क्योंकि इसके ऊपर यूपीएससी ने टाइम एंड अगेन क्वेश्चन पूछा है, एंड दिस इज ऑलवेज ए हॉट टॉपिक. ये हमेशा एक हॉट टॉपिक है जिसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती रही है. ओके, सो फर्स्ट इज की व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या चीज है. सी देयर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग. वन इज monetary policy and another is fiscal policy. So monetary policy is taken care by Reserve Bank of India and fiscal policy is taken care by Government of India. Both monetary policy and the fiscal policy could be of two types. Two types, यहाँ पर भी two types हो सकते हैं. One is expansionary and another is contractionary. Contractionary, expansionary. Okay, and this is contractionary. Here rupee is pushed in the market. मार्केट में पैसा बढ़ा देते हैं, यहाँ पर मार्केट में पैसा कम कर देते हैं. अगेन हियर मनी इज पुश्ड इन द मार्केट एंड देन money is sucked out of the market by various schemes or some tax formation or policy form. So we are going to discuss about this thing, monetary policy which is conducted by RBI, and it is fiscal policy which is done by Government of India. Okay, so we are going to discuss this particular thing. So what is monetary policy? Monetary policy क्या होता है? It is a set of actions by central bank RBI in India to regulate the money supply, price stability, and sustainable economic growth. So keep one thing in mind that before the 2014, okay, when Modi ji came in India, okay, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे कंट्री के, उसके पहले RBI's activity was, before 2014, RBI's activity was only two things. One is price stability and then currency. Sorry, three activities were there till 2014: currency supply and then economic growth. Okay, till 2014. But जब मोदी जी कंट्री में आए ना हमारे, when मोदी जी became the prime minister of India, तो आरबीआई का जो ये वाली एक्टिविटी है ना इकोनॉमिक ग्रोथ की, this activity economic growth, this activity was snatched and this activity was made indirect. So as of now आरबीआई का जो मेजर एक्टिविटी है ना, that activity is price stability as also currency supply. ठीक है, these are the direct activities of RBI, direct activity. And indirect activity is what? Economic growth. Okay, this is the major activity of finance ministry. ठीक है, so keep this thing in mind. So यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि as a set of actions by central government to regulate the money supply, this is correct, this is also correct, and this economic growth, this is also an activity of RBI, but this is an indirect activity of RBI. RBI इसके लिए upfront actions
नहीं लेती है, ठीक है, कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, सो ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, सर्टेन एक्शंस टेकन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंश्योर द प्राइस स्टेबिलिटी एंड money supply, that is currency supply. Okay, this is clear. Then what is monetary policy transmission? What is monetary policy transmission? So monetary policy transmission means, like, this is RBI, this is Reserve Bank of India. Okay, and these are the common people, these are you and me. Okay, household or businesses, etc. Now RBI जो है ना, इनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करता है, नो डायरेक्ट interactions. Okay, in between what we have multiple banks. Okay, so whenever RBI is changing the policy rate में अगर जब भी change हो रहा है ना, तो bank should also be changing the policy rates. बैंक को भी वो पॉलिसी रेट चेंज करना है, एंड इफ लेट्स से कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, RBI has said that कि decrease it to 7%, so these banks should be offering loans to the people at 7%. This is monetary policy transmission. Monetary policy transmission. Okay, if RBI is saying that it should be 6%, then it should be going at 6%. But currently what is happening now is कि when RBI is saying that the current rate is 8%, we are declining to 7%. Now you give it to people at 7% only. So banks will not do it. Banks will continue supplying the money at either 8% or 7.5% or 7.6%. Okay, so this is what, this is challenge in monetary policy transmission. Okay, so time and again RBI has asked banks कि आप monetary policy को सही तरीके से करो, so that if we are in decreasing or increasing the benchmark rate, तो वो जनता के पास पहुंचना चाहिए. So monetary policy transmission is the process through which RBI's monetary policy decisions, such as changing in the policy rates, influences the economic variables, price levels, overall economic conditions. तो जब भी RBI जो है रेपो रेट चेंज कर रही है, तो impact of that particular thing should reach out to the household, or to the economic growth or economic institutions, etc. So this is called monetary policy transmission, and this is conducted by banks. Okay, because banks are the intermediary between the economic institutions and the Reserve Bank of India. Now, what is the statutory basis for this particular thing, monetary policy of RBI? This is RBI Act 1934, which was amended in 2016 to create the Monetary Policy Committee. Okay, so हमेशा UPSC क्वेश्चन पूछता है कि which particular body is statutory body or not, और अगर statutory body था तो किस एक्ट से बना है. तो keep this thing in mind कि जो monetary policy of RBI है, this was formed from the RBI Act 1934 in 2016. Okay, then there is something called, one is monetary policy committee, then monetary policy transmission, then something is called monetary policy framework. Framework क्या होता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और आरबीआई ने मिलकर ना एक टारगेट सेट करा है कि जो कंट्री का जो इन्फ्लेशन है ना, वो कंज्यूमर जो इन्फ्लेशन है, उस इन्फ्लेशन की जो टारगेटिंग है ना, कि वो टारगेटिंग इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए हमारी कंट्री का. सो दैट पर्टिकुलर टारगेट सेट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क. करंटली दिस टारगेट इज सेट फॉर 5 years, और उसका जो बेसिस होता है, दैट बेसिस इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. वी नो कि हमारे पास होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है. So UPSC can confuse you by quoting the word WPI. WPI नहीं है यहाँ पर, CPI है, Consumer Price Index. And what is this? This is inflation target. Okay. And what is that target? The target is that the inflation rate in the economy should be either 4% plus minus 2%. So that is, the band of inflation is 2% to 6%. If the inflation rate is going 6% plus, or maybe 2% minus, that is 1%. So in both the cases, RBI will fail. RBI will fail from its mandate. मैंडेट फेलियर हो जाएगा आरबीआई का. ओके, एंड देन दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर होगा ना, दैट पर्सन हैज टू सप्लाई अ रिपोर्ट टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, इतना समझ आया आप लोगों को? इफ दिस इज क्लियर, देन गिव मी अ थम्स अप, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स अगेन. Okay, so now the various tools, used by Reserve Bank of India are
quantitative tools and then quantitative tools and qualitative tools. So these quantitative tools are mostly based on the numbers. Okay, so these are either open market operations. ये लिस्ट आपको याद होना चाहिए बिकॉज यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता रहता है बार बार, ठीक है, एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे इस पे क्वेश्चन आना हाईली लाइकली है. So these are open market operations, then bank rate, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, MSLR, then liquidity adjustment facility LAF, which is called repo rate and reverse repo rate. So ये जो list है ना, ये list आपको पता होना चाहिए कि what are the various quantitative tools used by UPS, Reserve Bank of India. Okay. Then another is qualitative tools. These qualitative tools are based on the discussion between the banks and Government of India and the Reserve Bank of India. Okay. Sir, a little bit slower. थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊँ. Okay, ठीक है. So these tools are selective instruments used by Reserve Bank of India. ठीक है. So इसमें क्या क्या चीजें आती है, इसमें राशनिंग ऑफ क्रेडिट आता है, क्रेडिट को ऊपर करना है नीचे करना है, चाहे डायरेक्शन देना है, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट फॉर द कंजम्पशन ऑफ पर्पस, वेरिएशन ऑफ मार्जिन एटसेट्रा एटसेट्रा. तो इसमें क्या करते हैं ना कि मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी एंड द डायरेक्शन ऑफ मनी, कि पैसा कहाँ पर जाए और कितना अमाउंट ऑफ जाए. इसके ऊपर ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, जो ये वाली लिस्ट है ना क्वांटिटेटिव वाली, इस पे यूपीएससी आस्क अ डिटेल्ड एंड टेक्निकल क्वेश्चन, बट इसके ऊपर यूपीएससी आस्क मोस्टली अ सुपरफिशियल क्वेश्चन, ऊपर ऊपर का एक सरफेस क्वेश्चन बनेगा. तो यू शुड बी जस्ट नोइंग द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. इसका जो नेम्स है ना, ये नेम्स पढ़ लो, समझ नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, बट इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए. ओके, so this is about various kind of tools that RBI has. Second is ki I told in the beginning ki there are two kinds of thing. One is fiscal policy and another is monetary policy. So I told that ki jo monetary policy या fiscal policy है, it can be of two types. One is ki expansionary and another can be contractionary. So जो expansionary monetary policy है and जो contractionary monetary policy है, इन दोनों के बीच का difference क्या है? Just keep one thing in mind कि whenever we are using the word expansionary or contractionary, we are talking in the terms of money. हम पैसे के terms में बात कर रहे होते हैं, ठीक है. तो जो एक्सपेंशनरी होगा ना, यहाँ पर आरबीआई का एक ही ऑब्जेक्टिव होगा कि जो मार्केट है, मार्केट में जो पैसा है ना, वो पैसा बढ़ जाए, ठीक है. यही तो जो ये पैसा बढ़ता है ना, दिस पैसा इज कॉल्ड एक्सपेंशन. ओके, सो व्हाट आरबीआई विल डू कि आरबीआई विल रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा, तभी तो बैंक्स विल गो टू द आरबीआई एंड विल से कि हमें पैसा चाहिए. अब आरबीआई बोलेगा कि कम पैसा, इंटरेस्ट रेट कम है, तो बैंक्स विल बी एबल टू टेक मनी फ्रॉम द आरबीआई इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है. एंड सिंस इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है, तो बैंक्स विल बी टेकिंग मनी एट अ चीपर कॉस्ट पे अगर बोलेंगे तो चीपर कॉस्ट पे दे विल बी गिविंग मनी टू दी common people, and common people will be taking loan and they will be doing the expenditure and then they will be doing the investment. So market में पैसा बढ़ जाएगा. ओके, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव कि रुपी इंक्रीज हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करना पड़ेगा. व्हेन इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीजिंग, द रुपी इन द मार्केट इज इंक्रीजिंग बिकॉज मोर एंड मोर पीपल. आप खुद से सोचो ना कि अगर आपको पर्सनल लोन एक जगह पे 18% पे मिल रहा है और एक जगह पे आपको 12% पे मिल रहा है, तो आप 12% पे पर्सनल लोन ले लोगे ना. तो सेम थिंग इज आरबीआई बैंक्स आर डूइंग. ओके, कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज कर देंगे तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा. ओके, देन फर्दर कि अगर मार्केट में पैसा बढ़ेगा तो इंक्रीज इन द लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पर जो है लिक्विडिटी डिक्रीज कर जाएगी. देन व्हाट आर द वेरियस एक्शंस, सेम एक्शंस, जो चीजें यहाँ पर लिस्टेड है ना, सेम चीज यहाँ पर लिस्टेड है कि आरबीआई बाइज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट अंडर ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. देन सीआरआर को बैंक को रिड्यूस करना पड़ेगा. देन एसएलआर को रिड्यूस करना पड़ेगा, रेपो रेट को रिड्यूस करना पड़ेगा, रिवर्स रेपो रेट को भी रिड्यूस करना पड़ेगा, एंड बैंक रेट को भी रिड्यूस करना पड़ेगा, जो अभी इतना एक्टिव नहीं है. Here यहाँ पर क्या होगा, here RBI will be purchasing and here RBI will be selling. Keep this thing in mind, selling. Contractionary में क्या होगा, contractionary में क्या होता है, selling होती है, and expansionary में क्या होता है, purchase होता है.
तो विल बी सेलिंग, देन CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सारी चीजों को जो है हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप इतना समझ आया होगा आप लोगों को। इसके बेसिस पे यूपीएससी के जो दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं विल बी डिस्कसिंग। दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हिच केम इन 2020 एंड 2023। ओके, so read this question along with me. The question is saying कि which of the following activities of Reserve Bank of India is considered to be part of sterilization? ठीक है, इनमें से किस चीज को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, विच एक्टिविटी ऑफ दीज आर कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन? स्टेरिलाइजेशन किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम, नो, इसके लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। ठीक है, ऑल्दो दिस एक्टिविटी इज अंडर आरबीआई, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट, स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। देन डेट एंड कैश मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई का ये मैंडेट है, बट दिस इज नॉट कॉल्ड द स्टेरिलाइजेशन। देन रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ एनबीएफसी, नहीं, ये एक्चुअली एक्टिविटी जो है सीबी, आईआरडीए, आरबीआई, एवरीबडी इज डूइंग। दिस इज रॉन्ग। Here the right answer is conducting the open market operations. So what we do in the open market operations, OMOs, key banks are there, then RBI is there. So sometimes RBI is giving the GSECs and then completing purchasing it, and sometimes opposite of it. To complete this activity is called open market operations. अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, इफ यू स्टडी द न्यूज़पेपर ना, तो जो इकोनॉमिक्स वाला कॉलम है, इकोनॉमिक्स वाला पेज है, उसमें एवरी वीक और एवरी मंथ यू विल सी सर्टेन न्यूज कि आरबी इस बार आरबीआई ने नियरली 36,000 करोड़ रुपीस का ओएमओ करा, 45,000 करोड़ का किया है, 15,000 करोड़ का किया है। तो ये दिस इज ऑलवेज इन न्यूज। दिस इज क्वेश्चन नंबर वन। Second is the, if the RBI decides to, second Sir, question can is you if the, explain it once more? which particular thing here? Sir, third option, Open, sir. Debt management and oversight of settlement and tax. this particular is debt and cash management. Yes, sir. Okay, okay, this is not OMO, this is ना रिजर्व बैंक स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में जो है ना, क्या होता है कि एक्सेस मनी इज देयर इन द मार्केट, दिस इज द मार्केट। ओके, सो लॉट ऑफ मनी इज देयर। अभी नाउ नो कि लॉट ऑफ मनी से क्या होगा ना, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ने से दो चीजें होंगी, प्राइसेस ऑफ कमोडिटी विल इंक्रीज, सो इट विल इंक्रीज द पॉवर्टी। ओके, समटाइम्स इफ इन्फ्लेशन इज वेरी हाई ना, देन cost of raw material is very high. If cost of raw material is very high, in that case businesses will not be able to use the raw materials for increasing the supply or production activities, so industrial activities also increases, sorry, decreases. थर्ड थिंग इसकी वैल्यू ऑफ मनी जो है ना वो डिक्लाइन करने लगता है। सो इन द बिगिनिंग इन्फ्लेशन में बी गुड थिंग, बट इन द मीडियम टू शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन जो होता है ना वेरी बैड थिंग होता है। ठीक है, तो जब एक्स्ट्रा मनी जब मार्केट में आएगा ना, तो उससे इन्फ्लेशन हो जाता है। तो इस रुपी को जो सक करा जाता है ना, सकिंग आउट द एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम मार्केट इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। इसको स्टेरिलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन इज एन इंग्लिश वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब सकिंग होता है एक तरीके से। तो जब सक करना होगा ना मार्केट से एक्स्ट्रा पैसा, तो वी कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। अब इसमें करा क्या जाएगा, दिस इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड दीज आर दी बैंक्स और दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो जब पैसा अगर आरबीआई को चाहिए होगा, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मनी, डायरेक्शन ऑफ मनी। ठीक है, जब पैसे का डायरेक्शन ये इस तरफ जा रहा होगा, तो समथिंग एल्स शुड गो इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो दिस डायरेक्शन के ऊपर क्या आता है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाती है। सो स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि आरबीआई इज सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, आरबीआई इज सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, समझ आया क्लियर क्या हुआ? एंड दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन, व्हेन आरबीआई इज सेलिंग or purchasing, is called open market operations. So open market operation could be of two types, RBI is selling or RBI is purchasing. Okay, so here the right answer is conducting OMOs. This is wrong thing, this is not, this is not, this is not, these are not. All these are Good activities evening, of sir. RBI. Yes,
Sir, actually, basic concepts, sir, basic terms like VRR, sir, repo rates, sir, these have not been cleared till now, sir. So So ये most of the चीज students like me may not be aware. लिसन ना, वन थिंग इज कि जो ये वाला पर्टिकुलर न्यूज है ना, इसको समझने के लिए जो भी करंट हमारे पास चीजें आती जाएंगी उसको मैं समझाता जाऊंगा, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग ना, यू डोंट नीड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टर्म्स। ये जो CRR, SLR, रेपो रेट, इन सब की अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। स्टेबलाइजेशन को जो समझने के लिए है वो मैंने समझा दिया है आपको। अब जब आगे जब न्यूज आएगा ना कि वेयर वी आर रिक्वायर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ CRR, SLR, जब PYQ हम करेंगे ना कि जो हमारा इंटर बैंक ऑपरेशंस होते हैं तो वहां पे CRR, SLR विल बी रिक्वायर्ड। तो एट दैट टाइम आई विल बी टीचिंग यू अबाउट CRR, SLR एटसेट्रा। फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज ना, दिस पर्टिकुलर न्यूज, इसके लिए जो है आपको CRR, SLR समझने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? मोरोवर Okay, sir. मोरोवर वन मोर थिंग कि पीपल हु आर अटेम्प्टिंग 2026, ठीक है, उनके पास इनफ अपॉर्चुनिटी है कि दे गो इनटू द डिटेल ऑफ CRR, SLR। अगर आपके पास इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो एनीवे यू आर नॉट गोइंग टू गिव द अटेम्प्ट ऑफ 2025, बट द पीपल हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट 2025 ना, उनके लिए जरूरी है कि चीजों को स्किप कर करके तेजी से अपना करंट अफेयर का एरिया कंप्लीट करें। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? एंड वन मोर थिंग कि जब आप ये करोगे ना मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, एज आई सेड इन द बिगनिंग दिस थिंग कि यूपीएससी इज आस्किंग द करंट अफेयर ऑफ नियरली 1.5 years। तो ये जो सेशन की जो रिकॉर्डिंग है ना, ये रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी व्हेनेवर यू कंप्लीट द SLR, CRR और व्हाटएवर थिंग्स यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग ना, then you can come back to these videos and get understanding of this particular current affair things। ठीक है गाइस? कहाँ गए जिन्होंने ये सवाल पूछा था? ओके Okay, sir. तो ये वाला क्वेश्चन समझ आया, OMO वाला, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सी कि इफ RBI डिसाइड्स टू अडॉप्ट द एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी इंक्रीज करना है दैट मींस मार्केट में पैसा इंक्रीज करना है, ठीक है, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू, कौन सा इनमें से RBI नहीं करेगा? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। सो हमें पता है कि मार्केट में अगर पैसा इंक्रीज करना है, ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट रेट को लोअर करना है, रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑल दोज एक्टिविटीज जहाँ पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, वो सारी की सारी चीजें जो है ना, यहाँ पर इसका सही आंसर बन जाएगा। सो फर्स्ट थिंग इज की कट एंड ऑप्टिमाइज दी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो देखो दो चीजें होती है, CRR है एंड देन SLR है। So CRR is cash reserve ratio and this is statutory liquidity ratio। So CRR क्या होता है? This is the amount जिसके ऊपर जो है ना बैंक्स को रखना पड़ेगा RBI के पास एंड उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। एंड जो SLR होता है ना, ये इसके ऊपर जो है बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करनी होती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की उस समय जितना इंटरेस्ट रेट होता है ना उतना मिलेगा, विच इज नियरली 16% to 18%, इतना चल रहा होता है। दिस इज द रिजर्व रेशियो का अमाउंट है, ठीक है, और इसके ऊपर जो भी उस समय इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो मिलेगा। सो दिस अमाउंट दे हैव टू कीप एट बाय परचेजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग एंड दिस दे हैव टू बाय कीपिंग एट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जब इतना पैसा वो रिजर्व बैंक के पास रख देंगे और इतना पैसे को वो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लेंगे, तो बैंक्स विल हैव लेस मनी टू गिव टू, लेट्स से कि 100 rupees बैंक हैव, सो 4 rupees they have kept as CRR and then 18 rupees they have kept as SLR। so banks जो 22 रुपया है उनका तो यहीं पर अटक गया, so बैंक will be able to lend only 78 rupees। तो अगर 78 rupees ही lend कर पाएंगे तो क्या होगा, उससे एक्सपेंशन तो कम हो जाएगा ना। समझ आ रही है मेरी बात को? सो व्हेनेवर SLR एंड CRR इज डिक्लाइनिंग तो एक्सपेंशन विल हैपन, ठीक है, एक्सपेंशन होगा वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर वुड नॉट डू, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक्सपेंशन करना है तो क्या नहीं करना पड़ेगा, द RBI डिसाइड्स टू अडॉप्ट एक्सपेंशन तो क्या नहीं करेगा RBI, ठीक है, तो कट डाउन दी ऑप्टिमाइज ये करेगा, ठीक है, सो ये करेगा, तो दिस कुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द आंसर।
then increase the marginal, ये करेगा, this they have to do, sorry cut the bank, again this they won't have to do, this they won't have to do, ये अगर करेगा तो इससे भी क्या होगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, कट डाउन ऑन द बैंक रेट एंड द रेपो रेट, तो ये दोनों करने से क्या होगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, तो ये क्या बोल रहा है कि क्या चीज नहीं करना है, तो दे विल नॉट डू दिस पर्टिकुलर थिंग, इंक्रीज इन द मार्जिनल रेट, ये नहीं करेगा। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? द क्वेश्चन इज सेइंग कि एक्सपेंशन करना है, ठीक है, एक्सपेंशन करना है तो क्या नहीं करे, तो ये करोगे तो एक्सपेंशन हो जाएगा, ये करोगे तो एक्सपेंशन हो जाएगा, ये करोगे तो एक्सपेंशन नहीं होगा, ठीक है। इंक्रीज इन दी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिनका स्टेटिक बिल्कुल जीरो है, ठीक है, वो इस चीज को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर स्टेटिक में अगर हल्का सा भी कंप्लीट करा है आप लोगों ने तो लॉजिक से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको एमएसएफ का नहीं पता है, इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द एमएसएफ, ठीक है, इसके बारे में नहीं पता है, बट इफ यू आर अवेयर अबाउट द ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3, तो इसी को एलिमिनेट करके ना यू विल रीच आउट टू द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। टेक्स्ट बुक के वो स्टूडेंट्स जिनका अभी इकोनॉमिक्स की क्लास पेंडिंग है, ठीक है, दे विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स फ्रॉम देयर इकोनॉमिक्स टीचर, ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? एनीवे, जिसको अगर इसके ऊपर डाउट है ना, तो ऑन दिस मॉनेटरी पॉलिसी विल बी टेकिंग अ सेपरेट सेशन। राइट नाउ विल मूव ऑन। Second thing is कि in the beginning we have talked about the monetary policy of RBI. Now उसके components क्या क्या होते हैं, we'll be discussing about that thing. So one thing is कि monetary policy committee which decides the rate or the repo rate, वो क्या होता है उसके ऊपर we'll be discussing. So first thing is कि the establishment of monetary policy committee was done by an MOU, memorandum of understanding between the government of India एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच में एक मीटिंग हुई थी, एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी। दिस हैपेंड इन 2014, ओके। एंड व्हाट वाज द स्टैट्यूटरी बेसिस ऑफ दिस एमपीसी? द स्टैट्यूटरी बेसिस इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 which was amended in 2016 by अरुण जेटली जी ने इसको जो है अमेंड किया था। एंड कीप वन थिंग इन माइंड कि जब हम लोग दिस थिंग मॉडर्न इंडिया कंप्लीट कर रहे थे ना, तो देयर वी हैड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो एट दैट टाइम वी स्टडीड कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 था ना, उसके पीछे हिल्टन यंग कमीशन was there which gave report for the formulation of Reserve Bank of India, and this Reserve Bank of India actually came out in 1935. This act was passed in 1934 but it came out in 1935, okay. Then what are the legal provisions behind this monetary policy committee? ये आपको पता होना चाहिए। This is section 45ZB of Reserve Bank of India 1934, ठीक है। एंड इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इट विल बी अ 6 member बॉडी, 6 लोगों की बॉडी होगी, जिसमें one is कि 3 people will be coming from the Reserve Bank of India and 3 people will be coming from the Government of India side, okay. So 6 member committee, one is the chairperson of RBI, this is RBI governor, then deputy governor, then one person nominated by the RBI. So these 3 people are actually coming from the RBI side, and then 3 members nominated by the Government of India, ठीक है, 3 members Government of India की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। मोरओवर ये जो 3 लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आते हैं ना, इनका जो टेन्योर होता है, दिस टेन्योर इज ओनली 4 years। 2 साल आपको याद रखने हैं, 2 years यू हैव टू रिमेंबर, वन इज 4 years एंड दिस इज 5 years। जो इन्फ्लेशन का टारगेट है ना 4 ± 2%, दिस टारगेट विल बी चेंज्ड एवरी 5 years, ठीक है, हर 5 साल के बाद ये टारगेट को रिव्यू करा जाएगा। एंड सेकेंड ईयर नंबर इज 4 years। ये 4 years क्या चीज है कि जो कॉम्पोजिशन है उसमें 3 people are coming from the government of India, their appointment and tenure is 4 years only, and these 3 RBI members are as per their appointment years, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को? This I have explained. Then further, what is the quorum? Quorum क्या है कि out of these 6 people, 4 people are available if even if RBI के गवर्नर भी नहीं होंगे ना, बस 4 लोग अगर हो जाएंगे तो उसकी मीटिंग कैन हैपन, मीटिंग कैन स्टार्ट, okay. Then decision taken by this body is based on the majority vote. In many cases what happens is कि these are the 6 people and this is the RBI governor।
अगर आरबीआई गवर्नर जो है ना, मेनी टाइम्स दिस पर्सन इज गिवन ओनली वन वोट, अगर ये भी अगर एग्री नहीं करते हैं, बट समथिंग इज पास फ्रॉम द मेजोरिटी, देन ऑल्सो द डिसीजन विल बी टेकन। ओके। सेकेंड थिंग कि इन केस देर इज अ टाई, अगर कुछ टाई होता है किसी चीज के अंदर, अगर 3 लोग बैठ जाते हैं, टाई होता है, तो अल्टीमेट डिसीजन टेकन विल बी बेस्ड ऑन द वोट ऑफ द आरबीआई गवर्नर। सो कीप टू थिंग्स इन वन थिंग इन माइंड कि आरबीआई का जो गवर्नर होता है ना, दैट पर्सन हैज द कैपेसिटी टू वोट 2 टाइम्स, एक बार पहली बार में, लेकिन अगर पहली बार में टाई हो गया तो दिस आरबीआई गवर्नर कैन अगेन गिव अ वोट। ओके। वन मोर थिंग कि जो आरबीआई की जो भी जो एमपीसी है ना, एमपीसी और एक बहुत बड़ी बॉडी है आरबीआई, ठीक है। तो एमपीसी एक छोटी सी बॉडी है जिसमें 6 लोग हैं, और यहाँ पे जो है ना थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं, ठीक है, एंड देन पॉलिटिशियंस है, एक्स ब्यूरोक्रेट्स है, एवरीबडी इज देयर। बट ये जो एमपीसी ने एक बार जो डिसीजन ले लिया ना, दिस एमपीसी डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन द होल आरबीआई, पूरे के पूरे आरबीआई के ऊपर ये डिसीजन बाइंडिंग रहेगा। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, the MPC's decisions are binding on the RBI. There is no amendment, there is no repeal. ठीक है, very very powerful body. Moreover, there is no political intervention in this particular body. ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। Now we'll see a question on this particular thing. इसके ऊपर जो है यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है ये देख लेते हैं एक बार। So the question is कि which of the following statements is are correct regarding the monetary policy committee। ये क्वेश्चन कब पूछा है, 2017 में पूछा है। एमपीसी कब बनी है, एमपीसी बनी है 2016 में। नेक्स्ट ईयर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इसके ऊपर। एंड 2014 में क्या हुआ था, एमओयू हुआ था। 2014 में नहीं, 15 में एमओयू हुआ था, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कि इट डिसाइड्स द आरबीआईज बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। दिस इज ट्रू, यस। दो चीजें दिमाग में रहे कि जो इन्फ्लेशन टारगेट है, इन्फ्लेशन टारगेट, दिस इज डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस आरबीआई मिक्स्ड टुगेदर, ये दोनों मिलके करते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। बट जो रेपो रेट का डिसीजन होगा ना, दैट विल बी टेकन बाय एमपीसी ओनली, वेयर 3 members आर फ्रॉम आरबीआई एंड 3 members आर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट दीज पीपल आर नॉट पॉलिटिशियंस, नॉट एमपीज, नॉट पार्लियामेंटेरियंस, नॉट मिनिस्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सो it decides the RBI benchmark interest rate. This is correct. It is a 12-member body. No, it is only a 6-member body. ठीक है। It functions under the chairmanship of the Union Finance Minister. No. MPC is an independent body led by Reserve Bank of India. नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड नहीं करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन लीड करते हैं, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। So option number one is incorrect. Option number one is correct. This is correct. This is incorrect. This is incorrect. So right answer is option number A only. ठीक है। So two topics we have discussed along with their current affairs. Now the third topic is monetary policy transmission. ठीक है। So as I told in the beginning, कि this is the Reserve Bank of India and these are common people. ठीक है। So whenever RBI is taking some change in the repo rate or the policy rate, etc. So earlier, let's say it was 8%, RBI has declined it to 7.5% or 7%. So जितना मेजर से 1% से या 0.5% से अगर इन्होंने डिक्लाइन करा है ना RBI ने, तो सेम अमाउंट से इट शुड ऑल्सो गो डाउन, ठीक है। RBI ने जो चेंज करा है सेम अमाउंट से वो परकोलेट होना चाहिए टू द कॉमन पीपल, बट इन एक्चुअल इट डज नॉट हैपन। So what is the problem? The problem is in monetary policy transmission, and the reason I gave was कि इसके बीच में banks होते हैं, ठीक है। So banks जो RBI जो भी monetary policy में change करता है ना, that change is not coming to the common people. So this is called monetary policy transmission. So we'll discuss about it. The objective of monetary policy, the objective is to ensure that changes in the policy rate by Reserve Bank इफेक्टिवली इन्फ्लुएंसेस द लैंडिंग रेट। लैंडिंग रेट मतलब कि जब हम लोग बैंक्स में जाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि भाई कार लोन क्या है, हाउस लोन का रेट क्या है, एजुकेशन लोन क्या है, पर्सनल लोन क्या है, मैरिज लोन क्या है, स्टार्टअप लोन क्या है, ये सारी सारी चीजें जो होती है ना, दैट इज कमिंग अंडर द लैंडिंग रेट्स। देन इन्फ्लेशन, पॉलिसी रेट चेंज होगा तो इन्फ्लेशन चेंज होगा, एंड देन इकोनॉमिक ग्रोथ, एज आई सेड कि इट इज एन इनडायरेक्ट एक्टिविटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Okay, so this is the objective of transmission. If the transmission is 100%, so what will happen कि जो भी RBI चेंज कर रहा है ना, वो डायरेक्टली हमारे कंट्री में पॉजिटिवली
इम्पैक्ट लेकर के आएगा। Then transmission mechanism. What is the mechanism? The mechanism is कि policy rate changes affect the bank lending rates, credit availability, investment, consumption, ultimately influencing the inflation and credibility. Sorry, GDP growth. So क्या होगा कि लोन जो है वो कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएगा। इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो है कम होगा या ज्यादा होगा। इससे प्रोडक्शन जो है इंक्रीज करेगा या डिक्लाइन करेगा। इससे एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो या तो इंक्रीज करेगा या डिक्लाइन करेगा। Prices of good will either increase or decrease. So this is the mechanism of changing the economic growth of the country or economic pattern of the country. Okay. Now, what are the challenges? Challenges are कि first of all delay होता है इसके अंदर। सर सॉरी टू इंटरप्ट। Yes. सर प्रीवियस और न्यू बैचेस को क्लब किया गया है क्या सर, या ये न्यू बैचेस के लिए है? Yeah, can we discuss this thing later? After this meeting आप मुझे कॉल कर देना एक बार। श्योर सर। आपका नाम क्या है? सर विकास। विकास, आप मुझे एक बार, मैं आपको कॉल करता हूँ एक बार मीटिंग के बाद से। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। सो वन थिंग इज कि जो ये मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है ना, तो इस ट्रांसमिशन में क्या होता है कि वन थिंग की इसकी आरबीआई इज देयर, देन एसबीआई इज देयर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई है, देन यस बैंक है, एटसेट्रा बैंक्स है ना। तो लेट्स से कि आरबीआई ने कहा कि एक मंथ के अंदर आप चेंज करके लेकर के आओ, बट दे मे टेक 1.5 months, 2 months, एटसेट्रा। सो वन थिंग इज कि दे आर कॉजिंग द डिले। देन बैंक्स, उनका खुद का जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में आपको पढ़ना है, यूपीएससी इसके ऊपर मेंस में एंड प्री में जो है ना मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछती है। ठीक है। देन डिपेंडेंस ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स विद फिक्स्ड रेट्स। अगर स्मॉल सेविंग स्कीम रहेगा और उसका फिक्स्ड रेट रहेगा, दैट मीन्स कि उसके ऊपर बैंक्स को 5% का लोन देना ही है, तो दैट मीन्स कि बैंक्स का कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज इंक्रीजिंग। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन अगर इंक्रीज कर रहा है तो बैंक्स जो है ना न्यू लोन के ऊपर अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन नहीं कर सकती है। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑलरेडी फिक्स्ड रेट। तो रिजर्व बैंक का जो पॉलिसी रेट में फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, उससे इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देन लो फाइनेंशियल मार्केट डेप्थ अफेक्टिंग द रेट एडजस्टमेंट। कहने का मतलब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए आप लोगों के लिए, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि ट्रांसमिशन में, कि लेट्स से कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज देयर, देन मल्टीपल बैंक्स आर देयर इन द कंट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटसेट्रा, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी एटसेट्रा। तो एचडीएफसी ने लेट्स से कि 500 करोड़ रुपीस जो है ना मार्केट से लोन उठाया। इसमें से सिर्फ 5 करोड़ रुपए आरबीआई की तरफ से आया, बाकी 495 करोड़ जो है उसने जो है बाकी एक्सटर्नल मार्केट से लिया है। नाउ आरबीआई वांट्स कि जब कभी पॉलिसी रेट में चेंजेस आए ना, तो ये एचडीएफसी भी करे। तो लेकिन जब एचडीएफसी ने सिर्फ 5% पैसा जो है आरबीआई से लिया है, बाकी सारा का सारा पैसा जो एक्सटर्नल बैंक से लिया है, तो आरबीआई के कहने के ऊपर जो है अपने सारे के सारे लोन्स के ऊपर क्यों चेंजेस करेगा। ठीक है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 4 कि लो फाइनेंशियल मार्केट डेप्थ अफेक्टिंग द रेट एडजस्टमेंट। मतलब आरबीआई इज डायरेक्टिंग फ्रॉम द बैंक्स कि आप हमसे, आप जो है पॉलिसी रेट चेंज करो, लेकिन आरबीआई ने जो टोटल लोन दिया है ना बैंक्स को, दैट लोन इज वेरी वेरी लो। ठीक है। ये पॉइंट जो है समझ आया आप लोगों की? फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है? फोर्थ नंबर पॉइंट इज सेइंग कि दिस इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड दिस इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 500 करोड़ रुपए का लोन है, जिसमें से 10 करोड़ रुपए उसने आरबीआई से लिया है। ठीक है। एंड 490 करोड़ रुपए जो है उसने बाहर से लिया है। अब आरबीआई ये बोलती है कि जब भी मैं इंटरेस्ट रेट जो है अप एंड डाउन करूं इस 10 करोड़ रुपए के ऊपर, 10 करोड़ रुपए के ऊपर जब भी मैं इंटरेस्ट रेट अप एंड डाउन करूं ना, तो आप इस 490 करोड़ रुपए के ऊपर भी इंटरेस्ट रेट अप या डाउन करो। तो एचडीएफसी बोलती है कि आपने तो जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करा है चाहे डिक्रीज करा है वो सिर्फ अपने 10 करोड़ के ऊपर करा है, बट ये जो 490 करोड़ रुपए जो मैंने लिए है ना, ये एक्सटर्नल मार्केट से लिए है, और एक्सटर्नल मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज ही नहीं हुआ है। तो जब चेंज ही नहीं हुआ है तो कैसे मैं अपना इंटरेस्ट रेट डाउन करूं, और अगर इंटरेस्ट रेट डाउन कर दिया तो लॉस स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द मेजर रीजन कि व्हाई मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होता नहीं है। ठीक है। रीजन बीइंग कि बैंक्स आर टेकिंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मोस्टली दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। सो दीज आर द 4 चैलेंजेस। ये मेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। सर एक्सटर्नल सोर्सेज आउटसाइड इंडिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इनसाइड इंडिया। कॉल रेट, ठीक है, कॉल रेट, उसके बाद उनका जो ओनर्स मनी होते हैं, देन इन्वेस्टर्स मनी होते हैं, इफ दिस इज बैंक। ठीक है।
तो बैंक्स के पास कहाँ से आएगा, प्रोमोटर्स का पैसा आएगा, ठीक है, जो इनिशियल खुद के होंगे, देन सम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, देन वी हैव कंज्यूमर्स मनी एंड देन मनी टेकन बाय द बैंक्स फ्रॉम द आरबीआई, ठीक है। लेट्स से कि दिस इज टोटल 100 करोड़, ठीक है, इसमें से आरबीआई ने दिया सिर्फ 5 करोड़, और आरबीआई बोल रहा है कि हम इस 5 करोड़ के ऊपर जो हम पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था ना, दैट वाज 8%, नाउ वी आर डिक्लाइनिंग इट टू 6%। तो अब आरबीआई ये चाहता है कि जो 6% है ना, इस 6% के ऊपर जितना भी 100 करोड़ था ना, इसके ऊपर बैंक वाले पूरे पूरे 100 करोड़ को 6% के आसपास दे दे। दिस इज द डिमांड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसीलिए जो ट्रांसमिशन होता है ना, ये ट्रांसमिशन पूरा नहीं होता। बैंक वाले ये बोलते हैं कि हमने आपसे जितना पैसा लिया है, 10 करोड़ लिया है ना, तो पूरे फंड के 10 करोड़ को जो है ना, हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि वो 8% हो जाए, बाकी का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो हमारा वैसा ही चलेगा जैसे हमने मार्केट से लिया है। दिस इज द मेजर रीजन। ये जितने भी रीजन लिखे हैं ना यहाँ पर 1 2 3, ये तो हमेशा से रहेंगे, लेकिन जो ये वाला रीजन है ना, दिस इज द मेन हर्डल। और आरबीआई के बीच में एंड बैंक्स के बीच में जो टसल चलता है ना, इसके पीछे यही रीजन होता है कि बैंक्स आर टेकिंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है कि हमने जो पॉलिसी रेट में चेंज करा है वो उसी के ऊपर जो है आप सारे के सारे लोन्स के ऊपर जो है वो करो, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट मॉडिफाई करके दो। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? नहीं क्लियर हुआ तो जो वीडियो होगा ना हमारा, इसको आप लोग रिपीट करके देखना, 1-2 बार सुनोगे तो समझ आएगा, नहीं तो न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स को पढ़ो, ठीक है, ये पॉइंट समझ आएगा। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है ये। 2015 मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से पहले का बना हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज सेइंग कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में आई है, कीप दिस थिंग इन माइंड, बट मॉनेटरी पॉलिसी ये तो ईयर ऑन ईयर चलता जा रहा है ना, सिंस 1934 1949 उसके बाद से चलता आ रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी, दीज आर द थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये चलता रहेगा। बट मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई है इन 2016 ऑफ इंडिया। दिस क्वेश्चन वाज क्रिएटेड इन 2015, मच बिफोर द monetary policy committee. So this question is on monetary policy, not on monetary policy committee. ठीक है? The question is कि with reference to Indian economy, consider the following statement. Last session में मैंने बताया था कि जब भी बोले कि consider the following statement, तो हमें इसको मत पढ़ो, सीधा किससे ये पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर छुपा हुआ है, ठीक है। सो विच ऑफ द अबव आर कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट क्या क्या है। सो वन इज कि अभी अभी मैंने बताया है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड बैंक रेट, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था ना क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, तो दिस आर पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव, इस लिस्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड देन ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड बैंक रेट, ठीक है, किसका पार्ट है? This is part of bank rate and open market operations, and public debt and public revenue. This is part of fiscal policy. इसका आरबीआई से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना है फिनेंस मिनिस्ट्री से, ठीक है। बट फिनेंस मिनिस्ट्री क्या कर सकती है? आरबीआई को एडवाइजर की तरह अपॉइंट कर सकती है, बट यहाँ पर आरबीआई का कुछ भी जो है से नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है। These two things are the decision making of Reserve Bank of India, and therefore this is part of Monetary Policy Committee. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी और दी मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है, विच इज कंडक्टेड बाय आरबीआई। सो जो हम रिजर्व रेशियो पढ़ते हैं और जो वेरिएबल और जो रिवर्स रेट क्या कहते हैं इसको, रिवर्स रेपो रेट पढ़ते हैं ना, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये एग्जैक्टली वैसा ही होता है। बट रेपो रेट एंड जो रिवर्स रेपो रेट होता है ना, उसमें जो पॉलिसी रेट होती है दैट इज फिक्स्ड फॉर द टाइम बीइंग। बट यहाँ पर क्या होता है ना कि जो रेपो रेट एंड जो रिवर्स रेपो रेट होता है ना, दैट इज ऑल्सो चेंजिंग बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ मनी के बेसिस पे ये भी चेंज करता रहता है। सो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट विल डिस्कस एंड देन रिवर्स रेपो रेट विल डिस्कस, उसके बाद से ये अपने आप समझ आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये बस हल्का सा रहेगा समझने के लिए। तो रेपो रेट इज देयर, रिवर्स रेपो रेट इज देयर,
So repo rate is the rate at which RBI is giving money to banks. ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि RBI is taking money from the banks. RBI जो है ना किस रेट पर, इंटरेस्ट रेट होता है, दिस इज इंटरेस्ट रेट एंड दिस इज इंटरेस्ट रेट। तो जब कभी पैसे का लेन देन होगा तो इंटरेस्ट रेट होता है ना, हम लोग आपस में पैसे देते हैं तो फ्री में एक दूसरे को दे देते हैं कि आज 10 रुपए ले, कल 10 रुपए ले, बट व्हेन इट इज कमिंग इन द फॉर्मल मार्केट तो क्या होता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। सो व्हेनेवर RBI इज गिविंग मनी टू द बैंक्स इट इज कॉल्ड रेपो रेट, and whenever banks are giving money to the RBI or RBI is taking money from the banks back, so it is called reverse repo rate. तो रिजर्व इसमें क्या होगा कि RBI अगर पैसा देगा बैंक्स को तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा, एज ऑल्सो कंट्री में मनी सप्लाई जो है इंक्रीज कर जाएगा, इसमें मनी सप्लाई डिक्रीज कर जाएगा और इन्फ्लेशन भी डिक्रीज कर जाएगा। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ रिवर्स रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है ना, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस रेपो रेट ओनली। कि रेपो रेट में जब भी फ्लक्चुएशन हो रहा है तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होना चाहिए एंड दिस शुड रीच टू द कॉमन पीपल और द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। दिस इज द क्रक्स ऑफ रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट। ओके, बाकी अगर समझ नहीं आया है तो दिस विल बी टॉट बाय योर इकोनॉमिक्स टीचर। नाउ अब जो वेरिएबल रेपो रेट एंड वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो क्या होता है इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो वन इज की डेफिनेशन क्या है कि द इंटरेस्ट रेट एट विच RBI लेंड्स मनी टू द बैंक्स थ्रू LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। 99% जो चीजें हैं ना, ये सारे कॉन्सेप्ट वो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट जैसा ही है। ठीक है, सो जिसमें जो है बैंक्स जो है RBI पैसा दे रहा है किसको, RBI लेंड्स मनी टू द बैंक्स। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एट विच RBI एब्जॉर्ब्स मनी, मतलब RBI इज टेकिंग मनी फ्रॉम द बैंक्स। एब्जॉर्ब्स का मतलब क्या होगा, एक तरीके से स्टेरिलाइजेशन। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था स्टेरिलाइजेशन के ऊपर, यहाँ पर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टेरिलाइजेशन क्या है, एक्सेस मनी इज सक्ड आउट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, ये चीज होता है यहाँ पर। सो दिस इज पार्ट ऑफ लाइक स्टेरिलाइजेशन की तरह होता है ये चीज। ठीक है, दिस इज नॉट स्टेरिलाइजेशन बिकॉज स्टेरिलाइजेशन में OMO होता है, बट द होल प्रोसेस इज लाइक स्टेरिलाइजेशन। देन यहाँ पर क्या होगा कि अगर RBI पैसा दे रहा है तो लिक्विडिटी का इंजेक्शन होगा, यहाँ पर एक्सेस लिक्विडिटी की सकिंग आउट होगी। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी क्या होगा कि बोरोइंग रेट कम हो जाएंगे, इससे कंट्री में क्रेडिट बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा और इससे इकोनॉमिक एक्सपेंशन होगा। क्यों, क्योंकि बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज, देन इंडस्ट्रीज, दे विल बी इन्वेस्टिंग। यहाँ पर क्या होगा, उसके ऑपोजिट होगा कि मनी विल बी सक्ड आउट एंड देन इन्फ्लेशन विल कम डाउन, हेल्प्स कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, कंट्रोल हो रहा है। देन ऑक्शन टाइप क्या होता है, कंडक्टेड थ्रू वेरिएबल रेट ऑक्शंस वेयर बैंक्स बिड फॉर द फंड्स एट डिफरेंट रेट्स। ठीक है, दिस इज द की डिफरेंस। जो रेपो रेट होता है एंड जो रिवर्स रेपो रेट होता है ना, इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पे RBI फिक्स कर देती है कि रेपो रेट क्या होगा, और यहाँ पर क्या होता है ना कि अमाउंट ऑफ मनी के बेसिस पे ना बैंक से बोलेगी कि हम इतना पैसा उठाएंगे इतने रेट पे, इतना पैसा उठाएंगे इतने रेट पे, इतना पैसा उठाएंगे इतने इतने रेट पे। दिस R1, R2, R3 इज चेंजिंग, सो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल ऑक्शन टाइप। ठीक है, जो जो नॉर्मल वाला हमारा रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट होता है वो फिक्स्ड ऑप्शन टाइप होता है, इसलिए वहां पे हम फिक्स्ड वर्ड को यूज नहीं करते, वहां पे सिर्फ ऑप्शन टाइप करते हैं। दिस इज वेरिएबल ऑप्शन टाइप। बस इतना आपको जो है, अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा ना तो यूपीएससी क्वेश्चन सिर्फ इतने के ऊपर पूछेगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन को याद रखो बस, बाकी सारा का सारा हो जाएगा। ये जो PDF में ये लाइन पढ़ोगे, ये लाइन पढ़ोगे, ऑटोमेटिकली समझ आएगा आप लोगों को। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन द रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट एंड देन वेरिएबल रेपो रेट एंड वेरिएबल रेट रेपो रिवर्स रेपो। ये वाली लाइन जो है ऑप्शन टाइप को आप याद रखो, बाकी सब हो जाएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। देखो एक चीज है कि जब आप नोट्स पढ़ते हो इकोनॉमिक्स के चाहे करंट अफेयर के ना, तो वहां पे दे विल बी गिविंग यू अ लिस्ट ऑफ आइटम्स कि वहां पर बैंक्स के PSR टारगेट क्या क्या है। तो उस लिस्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, वॉट एवर कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन आई एम इम्पार्टिंग यू ना, उस कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन पे आप ध्यान दो बस। ठीक है, तो वन इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग? लैंडिंग मीन्स गिविंग लोन्स
एंड प्रायोरिटी सेक्टर्स, देयर आर सर्टेन सेक्टर्स इन इकोनॉमी जिनके ऊपर अगर हमने लोन दिया तो टू थिंग्स विल बी देयर, वन इज कि दैट सेक्टर विल बूम, वो सेक्टर या तो बूम कर जाएगा या वो सेक्शन का जो है ना इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट होगा, ठीक है। तो जो ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होते हैं ना, उसमें दो कैटेगरीज होती है, वन इज की दे आर ईदर सोशल सेक्टर्स और दे आर इकोनॉमिक सनराइज सेक्टर्स। इकोनॉमिक सनराइज सेक्टर का मतलब ये है कि अगर आप कम कम इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो वह उनका इकोनॉमिक बूम बहुत तेजी से होगा एंड उसका सोशल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर यूपीएससी ने पास्ट में क्वेश्चन पूछा भी है, जहां पर यूपीएससी ने बस देखो दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट यहाँ पर बस सेक्शन का नाम लिख दिया है वीकर सेक्शन, यहाँ पे किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम नहीं लिया है। इवन आफ्टर दैट दिस इज पार्ट ऑफ द आंसर। सो पीएसएल क्या होता है कि देयर आर सर्टेन सेक्टर्स इन द इकोनॉमी विच आर अंडर सैचुरेटेड, जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। तो आरबीआई बोलता है कि अगर हम ऐसे सेक्टर को अगर हम पैसा देंगे ना तो क्या होगा कि वो सेक्टर में इकोनॉमिक बूम आएगा, और इकोनॉमिक बूम आएगा तो सोशल बूम भी आएगा। इन द वेरी बिगिनिंग आई टोल्ड यू कि आरबीआई का एक इनडायरेक्ट एक्टिविटी है। This is the direct activity of bank RBI. This is the direct activity of RBI. This is earlier till 2020 2014 it was direct activity. 2014 के बाद से जो है ये डायरेक्ट एक्टिविटी नहीं रही है, इनडायरेक्ट एक्टिविटी बन गई है आरबीआई की। तो ये जो हमारा पीएसएल आता है ना, वो पीएसएल इसी का एक कंपोनेंट है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का। कहाँ गया? दिस इज So as I said कि there are certain sectors in the economy जहाँ पर अगर आप लोन देते हो या हेल्प करते हो तो that sector will boom, as also socio-economic upliftment of the country will happen. So what are these sectors? These sectors are agricultural sector, micro, small and medium enterprise, MSME, एक्सपोर्ट सेक्टर। हमें पता है कि कंट्री अगर एक्सपोर्ट में कमाती है ना तो उसका रेम्यूनरेशन हमारी कंट्री में बहुत तेजी से आता है। Then education, social sector, housing is called social section as also economic section. Social infrastructure, mostly health and education. Then as also skills. Then renewable energy, हमें पता है कि this is a sunrise sector. Sunrise का मतलब ये है कि अभी ये विकास हो रहा है, स्लो डेवलपमेंट है इस चीजों का। देन अदर सेक्टर जिसको है ना आरबीआई जो है वो टाइम टू टाइम लिस्ट और डीलिस्ट कर सकती है। ओके, सो दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, इसमें प्लस या माइनस आने वाले टाइम में हो सकता है, ठीक है। सो सी द क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2013, द क्वेश्चन वाज कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय banks in India constitutes which of the following? One is agriculture, true. MSME, true. ठीक है। 2013 से पहले 2005 में कंट्री में एमएसएमई को लेकर के लॉ बन चुका था। एमएसएमई एक्ट 2005 जो है पहले से एग्जिस्ट कर रहा है बिफोर 2013। देन वीकर सेक्शंस, यस, इसमें जो है कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, बट वीकर सेक्शन को जो हम सपोर्ट करते हैं ना वो स्मॉल एक्टिविटीज, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसमें सारी चीजें कवर हो जाती है। सो हियर द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नाउ विल स्टडी द पीएसएल इन डिटेल। What is PSL? PSL is a regulatory requirement by Reserve Bank of India mandating banks, ठीक है। बैंक्स कौन कौन से हैं? जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, for example ICICI, HDFC, SBI, etc., to allocate minimum portion of their loan to sectors deemed critical for economic growth, क्योंकि ये सारे के सेक्टर जो है ना क्रिटिकल है इकोनॉमिक ग्रोथ के, और अगर इनको पैसा मिलेगा तो दे विल बी डूइंग इन्वेस्टमेंट एंड देन इकोनॉमिक ग्रोथ विल हैपन इन द इकोनॉमी। ओके, तो इसके आगे क्या है इसमें कि बैंक्स जो है किस तरीके से पैसा देती है। वन इज की दे विल डायरेक्टली लेंड टू दी लेंड फैसिलिटी लेंड टू दीज सेक्टर्स, इन सेक्टर पे डायरेक्टली पैसा दे देगी। सेकंड थिंग इज की कुछ एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सच एज बॉन्ड्स हो गए या कुछ इंटिटीज के जो है लीगल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, वहां पर भी अगर पैसा दे देगी तो पीएसएल टारगेट जो होते हैं ना दे आर कंसिडर्ड मेट, कि ये पीएसएल टारगेट्स बैंक्स के मीट कर गए हैं। इन केस बैंक्स आर नॉट एबल टू गिव द मनी तो उनको अपना पैसा दो जगह पे फंड करना पड़ेगा, इधर RIDF मैनेज्ड बाय NAB एंड NABARD, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में अगर अपना पैसा डाल दो, नहीं तो NABARD, SIDBI, मुद्रा, नेशनल हाउसिंग बैंक्स के अलग अलग फंड्स होते हैं जो आरबीआई टाइम टू टाइम रेगुलेट करता है। सो व्हाट इज हैपनिंग कि ICICI इज देयर, ठीक है। ICICI को किसी ईयर में 50 करोड़ रुपए लोन देना था पीएसएल में, पीएसएल के डिफरेंट सेक्टर्स को, बट आरबीआई ने जो है उस ईयर
सिर्फ 40 करोड़ रुपीस दिया, 10 करोड़ रुपीस पेंडिंग है, तो अब आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई कैन गिव मनी इधर टू आरआईडीएफ दे देगा या सिडबी को दे देगा, या फिर वन मोर थिंग दे कैन डू दी ट्रेडेबल एक्टिविटी जो हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है? सो दे कैन गिव मनी टू हेयर और हेयर। मोreover वन मोर थिंग इज देयर कि पीएसएल लैंडिंग सर्टिफिकेट्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर आरबीआई है, आईसीआईसीआई है, एंड देन वी हैव एचडीएफसी, ओके। सो व्हाट इज हैपनिंग कि आरबीआई को सिर्फ 50 करोड़ रुपीस देना था, बट इन सर्टेन ईयर आरबीआई आईसीआईसीआई ने क्या करा कि 60 करोड़ रुपीस दे दिए, मतलब 10 करोड़ रुपीस उसने एक्स्ट्रा दे दिया है। और यहाँ पर एचडीएफसी है, एंड एचडीएफसी को 50 करोड़ रुपीस देना था, बस उन्होंने क्या करा है, सिर्फ 40 करोड़ दिया है। तो एचडीएफसी क्या करेगा ना कि 10 करोड़ रुपए का इनसे पीएसएलसी परचेज कर लेगा। तो हाउ मच दे हैव स्पेंड? दे हैव स्पेंड 50 करोड़, दे हैव स्पेंड 50 करोड़। तो दोनों के पीएसएल टारगेट्स जो है वो मीट कर जाएंगे। दिस जो पीएसएलसी का जो वो है ना फंडा जो है हमारा सर्टिफिकेट का जो फंडा है, दिस फंडा इज आल्सो अवेलेबल इन न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ठीक है? सो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। इसके ऊपर यूपीएससी हाईली लाइकली क्वेश्चंस क्रिएट कर सकती है पीएसएलसी के ऊपर, ठीक है? सो आरआईडीएफ पे पैसा दे दो नेबार्ड का, या फिर जो आरबीआई ने कुछ और सेक्टर्स बना रखे हैं, फंड्स बना रखे हैं इन लोगों के अंदर, उसको दे दो, नहीं तो आप पीएसएलसी सर्टिफिकेट्स को परचेज कर दो, ठीक है? सो व्हाट इज पीएसएलसी? दीज आर ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स। आई सेड कि भाई आईसीआईसीआई जो है एसबीआई को दे देगा, एसबीआई एचडीएफसी को दे देगा टू बाय एंड सेल दी पीएसएल लैंडिंग क्रेडिट्स, ठीक है? इससे क्या होता है कि बैंक्स अपने टारगेट्स को मीट कर देते हैं, ठीक है? सो आई होप दिस इज क्लियर। और इसके ऊपर जो एक क्वेश्चन जो आया हुआ है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा इंडिविजुअल सेक्टर्स को इंडिविजुअल सेक्टर को कितना कितना पैसा देना होता है, दिस लिस्ट इज ऑल्सो रिलीज्ड। और यूपीएससी मार्केट में चल रहा है ये चीज, बट यूपीएससी ने इसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। एंड इफ अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है ना, दैट विल बी टू टेक्निकल, तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछने वाली है। सो उस लिस्ट को मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट हैव अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ व्हाट इज पीएसएलसी एंड पीएसएल, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक इज, टू टॉपिक्स वी आर लेफ्ट विद। वन इज आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर, ठीक है? तो हमें पता है कि आरबीआई क्या करता है। आरबीआई इज बैंक ऑफ द बैंकर्स, आरबीआई इज द मैनेजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत सारी एक्टिविटीज आरबीआई इज डूइंग। सो वन ऑफ द एक्टिविटीज मेजरली आरबीआई इज डूइंग रेगुलेटरी एक्टिविटीज, यहाँ पे रेगुलेशन करता है। बट अदर देन रेगुलेटरी एक्टिविटीज, आरबीआई के ना बहुत सारे अर्निंग्स होते हैं, आरबीआई बहुत सारे पैसे कमाते हैं। नाउ आरबीआई जो है बहुत सारे पैसे कमा रहा है, और आरबीआई का ओनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो जो भी ओनर होगा, ओनर तो पैसा अपने प्रॉफिट लेने के लिए तैयार बैठा रहेगा ना, कि व्हाटएवर अर्निंग्स आर देयर, आई विल बी टेकिंग द ओनरशिप। लेट्स से कि विजन आईएएस इज देयर और वाजीराम इज देयर, सो इट इज डूइंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी। उनका अर्निंग हो रहा है, उनका प्रॉफिट हो रहा है, तो जो ओनर होगा उस ओनर का प्रॉफिट तो लेगा ही ना। तो सिमिलरली आरबीआई का ओनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। आरबीआई इज अ प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है। तो जो भी उसका प्रॉफिट होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। सो विद रिगार्ड टू दैट ओनली, कि रिसेंटली आरबीआई ने जो है ना 2.11 लाख करोड़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है, एंड दिस इज हाईएस्ट टिल डेट। तो इसी के ऊपर न्यूज है ये सारी चीजें, ठीक है? सो ये मैंने बता दिया कि 2.11 लाख करोड़ का जो है आरबीआई ने पैसा दिया है, सरप्लस ट्रांसफर करा है, एंड दिस इज नोटेबल राइज इन द सरप्लस ऑफ द आरबीआई, ठीक है? इसके ऊपर मीन्स का क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो सकता है कि दिस इज ऑलवेज कॉन्ट्रोवर्शियल, ठीक है? अब इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज देयर व्हिच वी नीड टू जस्ट मेमोराइज। इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? तो वन थिंग इज दैट कि जो आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफर होगा या कि नहीं होगा, आरबीआई को सरप्लस देना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या नहीं देना है, इसके ऊपर पास्ट में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। when the governor of RBI was Urjit Patel. So there was a controversy between the uh, then finance minister Arun Jaitley and the then governor of RBI which was Urjit Patel. उसके बाद से क्या हुआ था कि he resigned, ठीक है? तो ये ध्यान में रहे कि उर्जित पटेल कंट्रोवर्सी से एसोसिएटेड है। देन उसके बाद की सरप्लस ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम था बिमल जालन कमेटी, ठीक है? इसका नाम ध्यान रखेंगे आप लोग। एंड दिस कमिटी सेड कि यस सरप्लस ट्रांसफर करना चाहिए बैंक्स को, आरबीआई को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेकर के। बट देयर इज अ कंडीशन ये रहेगा कि जो कंटिजेंसी रिस्क बफर है, यानी कि इमरजेंसी, कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी होता है। इमरजेंसी रिस्क बफर होना चाहिए, दैट शुड बी बिटवीन 5% to 6% ऑफ आरबीआई का जो बैलेंस शीट है। आरबीआई के पास अगर 100 करोड़ रुपए है
तो नियरली 5.5 करोड़ रुपए से लेकर के 6.5 करोड़ के आसपास जो है ना बैंक आरबीआई के पास अपना होना चाहिए। दिस इज वन कंडीशन। सेकंड इज कि आरबीआई ने जितना भी पैसा आगे दे रखा है बैंक्स को, तो उसके ऊपर एक रिस्क की प्रोविजनिंग करें। तो ये दोनों चीजें क्या है, इसका मतलब ये है कि आरबीआई अपने पास पैसा बचा के रखेगा। जैसे बैंक्स के पास सीआरआर का कॉन्सेप्ट होता है, वैसे ही आरबीआई के पास एक सेल्फ सेविंग का एक फंडा है, एंड दिस इज 5.5% से 6.5% एज ऑल्सो प्रोविजनिंग ऑफ द लोन्स दैट बैंक हैज गिवन। इसके बाद जो पैसा आ रहा है ना, उसके ऊपर जो है वो सरप्लस ट्रांसफर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। दिस वाज रिकमेंडेड बाय बिमल जालन कमिटी। सो कीप दिस बॉडी इन द माइंड कि बिमल जालन कमिटी ऑल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बॉडी। ठीक है, इस बॉडी ने रिकमेंड क्या करा था कि सरप्लस ट्रांसफर होना चाहिए, एंड दीज वर द 2 कंडीशन गिवन बाय दैट। ठीक है, वन मोर थिंग, एक और कमिटी है, द नेम ऑफ द कमिटी इज YH मालेगान कमिटी, YH मालेगान कमिटी। एंड दिस कमिटी ऑल्सो सेड कि जो जो ट्रांसफर होगा ना, हायर ट्रांसफर जो है वो आरबीआई से बैंक के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाना चाहिए। तो इस पूरे न्यूज में जो है ना, आपको सिर्फ 2 ही चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। वन इज की Bimal Jalan Committee, also called as Economic Capital Framework, amount is 5.6% to 6.5%, risk provisioning, and then we have this thing, YH Malegam Committee. These 2 things you should be remembering. बाकी ये जितना भी लिखा हुआ है, इन सारी चीजों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, I hope this is clear. This is a very factual news. इसमें कुछ समझने लायक नहीं है. You just need to remember the name of Bimal Jalan and then YH Malegam. Both the committee has said कि पैसे देने की जरूरत है। बिमल जलन सेट 5.5 से 6.5% के आसपास अपने पास रखो, बाकी सारा पैसा वापस करो। ठीक है, एंड इसके ऊपर एक उर्जित पटेल एंड अरुण जेटली जी की बहस हुई थी, अच्छी खासी टर्फ हुआ था कंट्री में, एंड देन दिस पर्सन रिजाइंड। देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, इसको छोड़ दो आप लोग। देन एक चीज दिमाग में रखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरबीआई का नेट इनकम कहाँ से आ रहा है और आरबीआई के एक्सपेंडिचर्स क्या क्या हो रहे हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर आरबीआई एंड व्हाट आर द एक्सपेंडिचर्स ऑफ आरबीआई। ओके, सो वन इज की आरबीआई के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। वन इज की इंटरेस्ट फ्रॉम दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो हमें पता है कि आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटीज होती है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटीज होती है, उसका जो नेट होल्डर होता है, दैट होल्डर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेलिंग दिस थिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू वेरियस बैंक। तो इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं अप एंड डाउन, उससे आरबीआई जो है पैसा जनरेट करता है। तो दिस इज वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन ओपन मार्केट ऑपरेशंस, अगेन इंटरेस्ट रेट का पैसा होता है ये, तो हियर आरबीआई इज अर्निंग मनी। Foreign exchange operation, sometimes RBI is losing, sometimes RBI is gaining, but over the years ये भी चीज जो है पॉजिटिव रही है। देन इंटरेस्ट ऑन लोन्स, आरबीआई जो है कई बार लोन देता है टू दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो वहां से पैसा आ रहा है। एंड देन दिस इज रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट। ठीक है, तो दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ आरबीआई। देन व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ आरबीआई का खर्चा कहाँ पर हो रहा है आरबीआई का, तो खर्चा कहाँ पर हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। जो भी ये एक्टिविटीज कर रहा है ना, तो इसके लिए मैन पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, एयर कंडीशन है, फ्लाइट्स है, ट्रेवल्स है। समटाइम्स क्या होता है, लॉस ऑफ मनी होता है ड्यू टू ट्रांजेक्शंस। तो ऑल दिस थिंग आर ऑपरेशनल कॉसेस। देन जिस तरीके से इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स एंड बोरोविंग्स, तो जो भी पैसा आरबीआई के पास रख रहा है, तो आरबीआई को उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है। जो आरबीआई कहीं से बोरोविंग कर रहा है, तो उसके बदले आरबीआई को इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है। दिस इज अ थिंग। देन करेंसी इशू, हमें पता है कि आरबीआई इज इशूइंग नोट्स एंड देन कॉइन्स एक्सेट्रा, तो उसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है मिंट्स को ऑपरेट करने का। देन प्रोविजनिंग, जैसे मैंने बताया कि अभी बिमल जालन ने क्या बोला था कि 5.5% टू 6%, दिस इज वन थिंग। एज ऑल्सो रिस्क प्रोविजनिंग, तो जो रिस्क प्रोविजनिंग करने का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट होता है ना, कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, सो ये भी चीज आ रही है। सो दीज 2 थिंग्स आर द एक्सपेंडिचर एंड दिस इज द इनकम। ये लिस्ट आपको मेमोराइज करने की जरूरत है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। एंड इसके बाद जो भी नेट बच रहा है ना, कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, so this is surplus, and this surplus the government has to ये आरबीआई को जो है शेयर करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, लेकिन इसमें कि रिजर्व फंड्स एंड कंटिजेंसी फंड, ये वाला अमाउंट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ शेयर नहीं होगा। कीप दिस थिंग इन माइंड।
ठीक है, ये क्वेश्चन जो है रॉन्गली यहाँ पे लिखे चले आ गए हैं, दीज आर रिपीटेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो है हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, ये वाला भी डिस्कस कर लिया है, ये रिपीट हो गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर करिए, ये हमने डिस्कस कर लिया है ऊपर। देन फाइनल थिंग वी हैव इज माइबोर, लाइबोर, दो चीजें होती हैं एंड उसके बाद एक एक्चुअल चीजें होती हैं कॉल रेट। सो विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग नाउ। सो माइबोर क्या है? मुंबई इंटरबैंक रेट, मुंबई इंटरबैंक रेट है। ठीक है, तो मैंने एक चीज बताया था कि वन थिंग कि जैसे कि आरबीआई है, आरबीआई इज गिविंग फंड्स टू बैंक्स। ठीक है, इसके बाद बैंक्स के पास पैसा कहाँ से आता है? प्रोमोटर्स का पैसा आता है। देन पैसा कहाँ से आता है? कॉमन पीपल, कॉमन मैन, हमारे आपके पेरेंट्स ने, हमने बैंक में पैसा डाल रखा है। इसके बाद बैंक के पास पैसा आता है दूसरे बैंक्स का। इफ दिस इज आईसीआईसीआई तो इसके पास पैसा आ गया एसबीआई का, एसबीआई के पास पैसा आ गया एचडीएफसी का, एचडीएफसी के पास पैसा आ गया लेट्स से कि एक्सिस बैंक का, एक्सिस बैंक के पास पैसा आ गया यस बैंक का। सो दीज पर्टिकुलर थिंग्स ना, दिस इज कॉल्ड इंटर बैंक ऑपरेशंस, इंटर बैंक ऑपरेशंस। तो जो ये इंटर बैंक ऑपरेशंस होते हैं ना, तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है, दिस इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड कॉल रेट। ठीक है, कॉल मनी और कॉल रेट। अभी जो रेट है ना कॉल रेट मे बी 4% और 5% और 6%, ये तो बैंक्स के बीच में हो रहा है। ठीक है, बैंक्स के बीच में हो रहा है, तो इसको डिसाइड कौन करेगा कितना रेट रखना है इस चीज को? तो इसके पीछे का जो सोर्स होता है ना, दैट सोर्स इज माइबोर। ठीक है, और माइबोर का भी जो सोर्स होता है ना उसके पीछे, दैट इज कॉल्ड लाइबोर। दिस इज लंदन, लंदन से है इंडिया माइबोर, एंड इंडिया से आने के बाद अक्रॉस इंडिया जितने भी बैंक्स हैं ना आपस में जो पैसा का लेन देन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल रेट। सो इसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट इज कॉल मनी। देखो क्या होता है ना कि बैंक्स को जो है ना हमेशा लिक्विड मनी चाहिए होता है, बैंक्स के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो लिक्विड मनी चाहिए होता है फॉर देयर डे टू डे एक्टिविटीज। जस्ट अ मोमेंट, कि उनको जो है डे टू डे एक्टिविटी के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। जो वो एक्टिविटीज के लिए पैसा चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करते हैं कि दे डिपेंड ऑन द मनी विच इज प्रेजेंट इन द कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट के पैसे के ऊपर वो लोग डिपेंड करते हैं। सो नाउ व्हाट हैपेंस ना कि ये जो पैसा है ना, ये पैसा इज ओवरनाइट। ठीक है, और इसमें कुछ सिक्योरिटी सबमिट नहीं करनी पड़ती है, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कोई कोलेटरल नहीं रखना पड़ता है। ठीक है, दिस इज कॉल मनी मार्केट। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉल मनी मार्केट इज अ सेगमेंट ऑफ मनी मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड्स, दिस इज द की वर्ड जिसके ऊपर यूपीएससी खेल सकता है, आर बोरोड एंड लेंट। बोरोड एंड लेंट किसके बीच में? बैंक्स के बीच में, बिटवीन द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टिपिकली फॉर पीरियड ऑफ 1 डे। तो ध्यान में रहे कि शॉर्ट टर्म है, दिस इज वन थिंग, 1 डे के लिए है। देन इसके अलावा क्या चीज होगा? नो कोलेट्रल, कोई कोलेट्रल सबमिट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द फीचर ऑफ कॉल मनी मार्केट। यूपीएससी पूछ सकता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉल मनी मार्केट। सो इट इज शॉर्ट टर्म, 1 डे, नो कोलेट्रल इज रिक्वायर्ड। ओके, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द लिक्विडिटी एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बैंक। इसी के लिए वो लोग इस चीज को उधार करते हैं। ठीक है, टेन्योर कितना कितना टाइम का होता है? 24 घंटे के लिए चाहिए होता है। आई सेड कि 1 डे के लिए चाहिए होगा ये चीज। देन कौन कौन ऑपरेट करेगा? कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी। आरबीआई लिखा हुआ है यहाँ पे, आरबीआई इज ओनली द रेगुलेटर, आरबीआई पार्टिसिपेट नहीं करता है, आरबीआई सिर्फ रेगुलेट करेगा। अगर यहाँ पर आरबीआई रेगुलेट करने लगेगा तो दिस विल नॉट बी एन इंटर बैंक ऑपरेशन। ठीक है, सिंस इट इज एन इंटर बैंक ऑपरेशन, सो नो रेगुलेटरी बॉडी फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरवीन्स इनटू दैट, दे ओनली एक्सटर्नली रेगुलेट्स द थिंग। ठीक है, पर्पस क्या होता है कि छोटी मोटी चीजें, सीआरआर हो गया, एसएलआर, और जो बाकी जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट होती है ना उसको फॉलो करने के लिए होगा। दिस इज अनसिक्योर्ड। ठीक है, कोई कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। देन इंटरेस्ट रेट कितना होगा? इस जो भी इंटरेस्ट रेट होता है ना उसको हम लोग कॉल रेट बोलते हैं इसके अंदर। सो ये इतना आप लोग को समझ आया होगा। रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है, बट दिस इज आरबीआई इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कि यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। इसके बाद विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस थिंग लाइबोर, माइबोर एंड कॉल मनी मार्केट। हमने यहाँ पे कॉल मनी मार्केट का जो बैकग्राउंड था ना फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइबोर एंड माइबोर, उसको हमने डिस्कस कर दिया है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, collateral borrowing and lending operations, collateral borrowing and lending operations are part of what?
ये देखो फिक्स्ड फॉरेक्स मनी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो एक्सटर्नल हो गया कंट्री के। स्टॉक मार्केट में बोरोविंग नहीं होती है, ठीक है, दिस इज कम्प्लीटली कैपिटल बेस्ड, बोरोविंग नहीं होती है यहाँ पर। आप जब आईसीआईसीआई डायरेक्ट करते हो, चाहे जीरोदा करते हो, चाहे ग्रो करते हो ना, ग्रो ऐप करते हो, तो वहां पे 1 डे के लिए आप उधारी पे जो है ना, जो ब्रोकर है उससे पैसा लेकर के आप इंट्रा डे लगा सकते हो, बट दैट इज नॉट कॉल्ड बोरोइंग, ठीक है, वो पैसा आपका एकदम से सेविंग अकाउंट से काट लेगा वो आपके, ठीक है, तो दैट इज नॉट कॉल्ड बोरोइंग, बोरोइंग का पार्ट नहीं है वो। तो जो आप किसी भी जो जो ये है ना, हमारा आईसीआईसी डायरेक्ट है, चाहे ग्रो है, चाहे जीरोदा है, वहां पे जो आप 1 डे के लिए इंट्राडे करते हो लोन पर, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है, तो वो बोरोइंग का पार्ट नहीं है, सो यहाँ पे ये भी गया। देन बॉन्डिंग, बॉन्ड मार्केट का भी पार्ट नहीं है, ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ मनी मार्केट। देखो यहाँ पे कोलेटरल बोरिंग है, इसके बाद लैंडिंग ऑपरेशन है, तो लैंडिंग ऑपरेशन के बेसिस पे हियर द राइट आंसर इज मनी मार्केट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट्स, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट एंड स्टॉक मार्केट, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडिंग इन द कैपिटल मार्केट। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि स्टॉक मार्केट इज पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो इस पे क्या होता है, स्टॉक होता है एंड बॉन्ड होता है, इसमें 99% ऑफ सॉरी 90% ऑफ एक्टिविटी जो होती है ना, वो कैपिटल एक्टिविटीज होती है, ठीक है, जो रिमेनिंग 10% एक्टिविटीज होती है ना, वो बोरोइंग की होती है, तो मोस्टली स्टॉक मार्केट इज अबाउट कैपिटल, ठीक है, एंड देन दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल मनी मार्केट इज आल्सो अबाउट रेजिंग द कैपिटल, ठीक है, सो हियर ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन में है क्या, ओनली 2 ऑप्शंस, दिस इज करेक्ट। ट्रेजरी बिल बॉन्ड मार्केट हो गया, दिस इज आल्सो बॉन्ड एंड दीज आर नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, दीज आर पार्ट ऑफ लोन्स एंड बोरोइंग्स, ठीक है। लास्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इज माइबोर, लाइबोर एंड कॉल मनी मार्केट। तो एक चीज दिमाग में रखो कि जो लाइबोर एंड माइबोर है ना, दिस इज थियोरेटिकल पार्ट, ठीक है, बट एक्चुअल में जो मार्केट में टेक प्लेस करता है ना, दिस इज एक्चुअल थिंग, जो हम और जो मतलब जो बैंक्स आपस में पैसा लेंगे ना, वो कॉल मनी मार्केट पे लेंगे, उसके पीछे की जो थ्योरी होगी वो ये रहेगी, ठीक है। सो इनिशियली इट इज डिसाइडेड इन द लंदन, देन इट कम्स टू इंडिया, मुंबई, एंड देन इट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस। सो क्या होता है, ये लाइबोर क्या है, बेंचमार्क रेट है, लाइबोर भी बेंचमार्क रेट है, माइबोर भी बेंचमार्क रेट है, बट दिस इज द एक्चुअल थिंग विच इज हैपनिंग फॉर 1 डे इन द इकोनॉमी। जो लोन ले रहे हैं ना एक साल एक दिन के लिए, तो वो जो लोन का रेट होगा वो यही होगा, उसके पीछे की जो थ्योरी होगी वो ये सब थ्योरी होगी। दिस इज एट ग्लोबल लेवल, सिंस इट इज हैपनिंग एट लंडन, दिस इज इंडियन एंड दिस इज ऑल्सो इंडियन। दिस इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेगुलेटेड बाय नॉट पार्टिसिपेटेड बाय, ठीक है, दिस इज बाय फिबिल, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बट इसको आरबीआई पास्ट में रेगुलेट करने की कोशिश कर चुका है, ठीक है, एंड दिस इज ग्लोबल, आईबीए से रेगुलेटेड होती है ये चीजें, ठीक है। बाकी क्या है, इसमें कोई कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी कोई कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक चीज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट या फिर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट, कि ऑल्दो इट इज सेड कि दिस इज मोर स्टेबल ड्यू टू ग्लोबल फाइनेंशियल रेगुलेशन, बट इसमें फ्रॉड बहुत होता है, हाई लेवल ऑफ फ्रॉड एंड करप्शन इज हैपनिंग हियर, एंड लीस्ट लेवल ऑफ what high level of stability and transparency is there here, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, जो लिखा हुआ है ना, आइडियली इट इज क्या नाम है, बुकिश लेवल पे इट इज वेरी स्टेबल, बट एक्चुअली इट इज फ्रॉडलेंट और करप्ट एक्टिविटी। और जो बुकिश लेवल पे जो है ना, ये चीज क्या लिखा हुआ है कि हाईली वोलेटाइल, बट एक्चुअली इट इज हाईली स्टेबल, ठीक है। प्री में आप यही लिख करके आओगे, बट मेंस में आप वो लिख करके आओगे जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। लाइबोर में इश्यूज क्या क्या होते हैं, एक तो इसके अंदर स्कैंडल्स होते हैं इंटर बैंक ऑपरेशंस के, वो लोग अपनी मर्जी से ही रेट को डिसाइड कर लेते हैं विच एवर इज सुटेबल फॉर देम, ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि वो रेट कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। देन इसमें ना मार्केट एक्टिविटीज, डिक्लाइनिंग मार्केट एक्टिविटी, इसका यूसेज जो है ना यूएस में, लंदन में, यूएस में, कनाडा में, देन साउथ अमेरिकन कंट्रीज में कम हो चुका है, मोस्टली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है ना, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एक्सेट्रा, वही लोग इसको यूज कर रहे हैं। एंड उसके बाद 2018 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया एक्सेट्रा, तो उसके बाद लाइबोर की जो है ना यूटिलिटी और भी कम हो गई है। आरबीआई ने इंडिया में ये बोला है कि लाइबोर से दूर रहो, एंड ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स विच आर ईदर एसओएफआर, यूएसए का इसको यूज कर लो, माइबोर तो इंडिया में ही यूज हो ही रहा है, देन चाइना का शिबोर है, एंड टाइबोर जापान का है। तो आरबीआई ने मोस्टली जो कोशिश करी है ना कि इंडिया में एसओएफआर ये लागू हो जाए, तो आरबीआई इज लुकिंग
कि लाइबोर से हम लोग दूर जाएं एंड SFOR के पास हम लोग आ जाएं धीरे धीरे, ठीक है। सो फॉर दिस टुडेज सेशन वी हैव डिस्कस्ड दीज टॉपिक्स। इसके बाद का जो डिस्कशन होगा ना इकोनॉमिक्स का, विल बी टॉकिंग अबाउट दिस वेज एंड मीन्स। इसके अलावा जो बाकी के टॉपिक्स आई हैव लिस्टेड इन द टॉप, एक मिनट, these topics, इसके अलावा many other topics, nearly 100 topics are there which we will be discussing for the upcoming prelims 2025. and as I said कि जो भी मैं आपको इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर दे रहा हूँ ना फॉर प्रीलिम्स 2025, दिस इज सफिशिएंट। करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है इसके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जितने भी ये मैगजीन्स है ना, कहाँ गए जो मैंने लिखे थे, ये सारे के सारे मैगजीन्स को मैंने छान ले मारा है। इंडेक्स मैंने विजन IAS का PT 365 से उठाया है, और उसमें लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन, बहुत सारा वैल्यू एडिशन करके जो है आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। इसमें मैंने PYQ इंक्लूड करे हैं, इसके अलावा प्रैक्टिस MCQ, ठीक है, दैट थिंग आल्सो आई विल बी इंक्लूडिंग इन द करंट टाइम्स, इन द अपकमिंग टाइम, ठीक है। सो नाउ आई विल ओपन माय स्क्रीन, और जितने भी आप लोग के पास क्वेश्चन थे ना एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक, यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है। कौन कौन अभी तक इस मीटिंग में सस्टेन कर पाया, क्योंकि दिस मीटिंग वाज वेरी लॉन्ग एज आल्सो लिटिल बिट टेक्निकल। आशित, ठीक है, सौजन्य, अक्षित, विकास, चेतन, विकास कहाँ है? हाँ, विकास ने कुछ क्वेश्चन पूछा था ना कि ओल्ड बैच एंड मिक्स बैच का। अगर आप वही वाले विकास हो तो विल बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन लेटर। अगर कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है एकेडमिक का तो विल डिस्कस नाउ, अदरवाइज 1-to-1 डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। एनी क्वेश्चन यू हैव अदर देन दिस क्वेश्चंस की बैच वाला? ईशा, दिलीप एंड स्वीपुप, आप लोगों ने हैंड रेज कर रखा है। एनी क्वेश्चंस? यस सर। सर अगर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन टारगेटिंग का पूछेगा, अगर स्टेटमेंट ऐसे फ्रेम किया है कि इन्फ्लेशन टारगेट जो है इज डन बाय RBI ओनली, तो ये नहीं, रॉन्ग हो जाएगा ना? रॉन्ग हो जाएगा। इन्फ्लेशन Okay. को टारगेट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिस थिंग। भाई इन्फ्लेशन से सरकारें बदल जाती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फर्क पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है कितना रखना है, 6%, 4%, 2%, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI दोनों करेगा। लेकिन एक बार ये टारगेट फिक्स हो गया तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनी है ना, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, जितने भी लोग वो नहीं घुसेंगे। वो लोग बस इतना कर देंगे कि अपने 3 लोग उसके अंदर बिठा के रख देंगे, बस, और कुछ नहीं कर सकते। हमें जो बाहर से बताया गया है, अंदर तो कुछ भी होता होगा, अपने को नहीं पता। यस सर, यस सर। कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, अदरवाइज मेरे टेबल पे जो पानी रखा था सर, पीछे सूख गया है। हाँ, सर जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी बनती है तो सर हमने 4 ±2% का डिसाइड किया है, लेकिन सर अगर कोई स्पेशल केस सिनेरियो होता है लाइक कोविड, ऐसे आया केस था, में अगर हम रेट्स, जी, तो सर ऐसा उसमें आया सर नहीं, क्या किया जाता है? कुछ नहीं होता, फिर ऐसे माफ कर देते हैं। कोविड जैसे बोला गया था ना कि जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने क्या बोला था कि गॉड्स इंटरवेंशन और समथिंग। तो बहुत सारी जगह पे इंश्योरेंस नहीं पे करे गए थे, बहुत सारे जो हमारे FRBM के टारगेट्स थे वो मीट नहीं हुए थे। तो ऐसे में तो जनता भी माफ कर देती है ना सरकार को। तो ऐसे सिचुएशन के लिए नहीं बना हुआ है, डिजास्टर को लेकर के नहीं बना हुआ है, बाकी नॉर्मल सिचुएशन के लिए बना हुआ है सारी चीजें। ओके सर। Hello, हाँ hi जी, sir, प्लीज। this is Dilip. हाँ जी, हाँ जी। Sir, can you please explain in English because I'm little bit uncomfortable in Hindi See, language. yes. In the very beginning, now when I was launching this program, I told that the PDF will be made in English. Okay, the discussion will be Okay. done 60 to 80% in English and 20 to 40% in Hindi, because there are certain Hindi students also. They have asked me कि PDF इंग्लिश हिंदी में दो। मैं PDF तो मैं इंग्लिश में हिंदी में बना नहीं सकता हूँ, तो PDF is given in English. Discussion is done in bilingual Hindi English mix, but mostly it is English. Sorry for this particular thing, but keep in mind कि English batch students कि most of the time all the economic terms or all the subject contextual vocabulary of that particular subject will be spoken only in English language.
ठीक है, and the complete PDF will be made in Okay. English language. Okay, sir. Fine. Thank you. Other question? Good evening, sir. Hmm. Sir, Please ask. in the starting of the meeting, you told that some of the current affairs lectures have already been done. So, नहीं what बोला about मैंने। that? नहीं बोला मैंने ये बोला कि करंट अफेयर की बिगिनिंग आज से स्टार्ट हुई है, करंट अफेयर का बिगिनिंग आज से हुआ है। इसके पहले जो मॉडर्न इंडिया है, चाहे मे बी दिस थिंग इकोनॉमिक्स एंड अदर चीजों का जो है ना, जो स्टैटिक एस्पेक्ट था ना, वो मैंने उसके ऊपर डिस्कशन किया था। ठीक है, Okay, sir. करंट अफेयर की बिगिनिंग आज से ही हुई है। दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ करंट अफेयर दैट वी आर गोइंग टू हैव टुडे, दैट वी हैव डन टुडे। सर पीएसएल में ये ऐसा भी रहता है क्या, डेडलाइन रहता है कि इतने टाइम में हो जाना चाहिए? क्योंकि आपने बोला ना शॉर्टफॉल मैनेजमेंट के लिए आप मतलब ये पीएसएल और ये बैंक्स को या तो यहाँ कुछ जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है और ये सर्टिफिकेट पीएसएलसी सर्टिफिकेट परचेज करनी होती है जो ट्रेडेबल एनुअल टारगेट्स होते एनुअल टारगेट्स तो होते हैं, बट जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, तो वहां पर कुछ इंडिविजुअल हो सकता है कि खरीफ का, रबी का, ऐसे कैसे कुछ हो सकता है। बाकी मुझे डिटेल में नहीं पता है। अब मैंने मना भी करा कि इसके जो इंडिविजुअल टारगेट्स है ना फॉर सप्लाइंग दी मनी एंड टाइम एटसेट्रा, इसको इग्नोर करने की जरूरत है, बहुत टेक्निकल हो जाता है फिर चीजें। ओके सर। लेकिन एनुअल टारगेट होंगे, ये फिक्स्ड है, एनुअल टारगेट्स तो होंगे ही होंगे। बाकी सेक्टर के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि कुछ मीडियम सीजनल साइकिल्स हो, मे बी इन एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली। यस सर, सर शॉर्टफॉल मैनेजमेंट की वजह से बस पूछे थे। ओके सर, थैंक यू। और कुछ क्वेश्चन है? बस इतना। हाँ जी। Sir, when will be the theme or topic wise previous year questions for other subjects as we had for history? हाँ, मैंने बताया ना कि वी आर रनिंग इन करंट अफेयर्स। मैं चाह रहा था कि एक बार करंट अफेयर को मैं लॉन्च कर दूं। ठीक है, उसके बाद जो इंडिविजुअल, देखो मेजर सब्जेक्ट्स है ना कि पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, दीज सब्जेक्ट्स वी हैव डिस्कस्ड। नाउ अदर सब्जेक्ट दैट वी हैव ना, उसमें जो दिस थिंग वेटेज इज लेस, तो हमने करंट अफेयर का एक मेजर वेटेज वाला वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड स्लोली वील बी इंसर्टिंग दोज स्टैटिक टॉपिक्स जिसमें हम लोग मेंटरशिप कर ले चीजों का। विल बी डूइंग दैट थिंग इन द कमिंग टाइम। Okay, sir. Thank you. Somebody was asking a question. Yeah, where can I find all the recordings? On YouTube channel, any drive link is there. हुआ क्या है ना कि बहुत सारी रिकॉर्डिंग जो मैं सेशन लेता हूँ ना रिकॉर्डिंग, उसके लिए जो टेक्स्ट बुक का ईमेल आईडी है ना, वहां से आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। बट पास्ट में काफी सारे सेशन ऐसे हुए थे जहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो हुए थे, बट वो रिकॉर्डिंग बीच में रुक गए, चाहे कुछ और हो गया। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग पूरे नहीं है। जहाँ पर भी रिकॉर्डिंग आई हैव, व्हाट आई डिड कि आई आस्क्ड पीपल टू शेयर their email IDs. I circulated a Google form where I asked people to submit their email IDs. So wherever they have submitted me their email IDs, as also I have session recordings. So I've shared that complete folder with the people. ठीक है, but in many cases मेरे पास वो रिकॉर्डिंग नहीं है। For this I have already asked the test book कि मेरे को जो है ना रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी दे। In the last session they told कि they will be giving this particular thing, but कब तक देंगे मुझे नहीं पता है। Okay, thanks. ठीक है, any other question? नो सर, थैंक यू सर, सेशन बहुत अच्छा था। Thank you so much. So, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है, yes please ask. sir, you said you have sent the videos to every students, but I haven't received the videos, sir. No. मैंने बोला कि सारे वीडियोस नहीं शेयर कर रहे हैं कि ओनली आई स्टार्टेड मीटिंग। जैसे ये वाला मीटिंग मैंने स्टार्टिंग में रिकॉर्ड किया था ना, तो हाँ सर। उसमें क्या होता है कि मीटिंग रिकॉर्ड होने के बाद से जो है ना चलते चलते वो मीटिंग कहीं और रही है, अपने आप रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने उनको बोल रखा है कि रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी दें, सो दैट कि जो नए स्टूडेंट्स है ना दे आर डिमांडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, सो दे हैव सेड कि दे विल बी डूइंग समथिंग, बट वो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अगर आने वाले टाइम में मिलेगा तो आई विल बी डूइंग। बट इसके पहले जो सेशंस रिकॉर्ड हुए थे ना, उन रिकॉर्डेड सेशन को मैंने आई हैव सर्कुलेटेड टू सर्टेन स्टूडेंट्स। सो उसके लिए अगेन आई विल बी सर्कुलेटिंग द गूगल फॉर्म। कल मॉर्निंग में कर दूंगा। जिन नए लोगों की ईमेल आईडीज आएंगे मेरे पास, so again I'll be sharing that complete folder with the people. ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, क्योंकि हाँ जी। पिछले हफ्ते भी मैं यही सवाल आपके पास पूछा था, अभी तक नहीं आया कुछ भी इसके बारे में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ओके यार, फिर से जो है ना मुझे एक बार भेजो जरा, स्पेशली मैं आपका ईमेल आईडी जो है ना उस फोल्डर में शेयर कर दूंगा।
सही सर। अभी कर देना, एज सून एज दिस मीटिंग इज ओवर ना कर देना, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है ना गाइस आप लोग के पास, तो प्लीज मुझे एक बार व्हाट्सएप करना। अभी बहुत लंबा हो गया है एंड आई एम रियली टायर्ड, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। इसके बाद नेक्स्ट सेशन विल बी हैविंग ऑन मंडे इटसेल्फ। थैंक यू सर। Thank you, sir. Good night. चलिए बाय, थैंक यू, Thank you, गुड नाइट, sir. बाय, गुड Hello, नाइट। sir. I have small. Hello, sir. ओके ओके, हाँ जी, प्लीज आस्क, प्लीज आस्क। Sir, Monday, what will be the timing, sir? 9 every Monday and 9. Thursday we are meeting at 9 at 9. Okay, it will start at 9 p.m. Yeah, meeting link will be Okay, shared at 8:45. Okay, and then we'll be having the okay, sir. meeting at Yeah. 9 p.m. Okay, thank you so Okay, much, sir. good Today night I have everybody. missed a few times. Okay, Okay, thank you, sir. Good night, sir. okay.